Hello everyone, welcome again to live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today's 5th October 2023. So now we come to the important news and the news is Trio wins chemistry Nobel for quantum dots. तो ये केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो है वो 3 लोगों को मिला है. इनके नाम इंपॉर्टेंट है और किस पर्पज के लिए किस रिसर्च के लिए मिला है वो इंपॉर्टेंट है. सो इनके नाम है एलेक्सी इकीमोव, लुइस ब्रूस एंड मोंगी बेरावेंडी. इन 3 लोगों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है. ठीक है, और ये मिला है किसके लिए? फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम डॉट्स. क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? These are very small crystals with peculiar properties that have found application in variety of fields. तो जो क्वांटम डॉट्स है वो बहुत ही स्मॉल पर्टिकुलर्स होते हैं और इनका जो यूज है वो बहुत सारे फील्ड में किया जाता है. तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि these are very beneficial to the humankind. इनकी इस रिसर्च के लिए इनको क्या दिया गया है? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया. Now we come to the next news. Bombay High Court take cognizance of the death in Maharashtra hospital. So यहाँ पर ये जो टर्म है cognizance, this is the term relating to law. और cognizance का मतलब क्या है? Cognizance का मतलब होता है कि judicial notice of any fact. So when a court takes judicial notice of a fact that I will decide or look into this matter, I will decide or look into this matter, then हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं कि कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस. यहां पर सेक्शन 190 of CRPC deals with the power of court to take cognizance. Power of court to take cognizance. ठीक है, अब सेक्शन 190 क्लॉज सी जो है, सेक्शन 190 क्लॉज सी टॉक्स अबाउट टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस. अब सी जो है, सी बात करता है कि कोर्ट जनरली कॉग्निजेंस जो लेता है वो पुलिस रिपोर्ट पर लेता है या फिर कंप्लेंट पर लेता है, और सी कहता है कि वो सुओ मोटो ले सकता है. सुओ मोटो का मतलब है अपनी पर्सनल नॉलेज के बेसिस पर. ठीक है, तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि कोर्ट किसी भी मैटर में सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज. व्हाई आप नॉट मेड एक्यूज्ड इन लिकर पॉलिसी केस? सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम ईडी. ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. अब क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली जो राज्यसभा के एमपी हैं श्री संजय सिंह जी, उनको अरेस्ट किया गया है yesterday by the enforcement department in relation to the liquor policy corruption. ठीक है, now the point is that के ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा है कि आप मींस आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को एक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया गया इस केस में? इफ there was corruption in this particular policy, so why ED did not make the Aam Aadmi Party as an accused? Now question arises whether a political party can be made an accused or whether a political party can be considered as an accused person. So answer is yes. ठीक है, because this political party as per the contention of ED has also taken benefit or illegal benefit by way of corruption in the liquor policy. So this political party can also become an accused. क्योंकि political party it has been registered, so it can be treated as a person. पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी में, सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी. अब सेक्शन 11 आईपीसी डिफाइन करता है पर्सन. तो पर्सन में कौन से पर्सन आते हैं? पर्सन में दो तरह के पर्सन आते हैं. वन इज द नेचुरल पर्सन
like human being, and second is the judicial person. So judicial persons like company, ठीक है, like ideal, ठीक है, and like Guru Granth Sahib, like any party. So a political party can also fall within the definition of the term person. That's why Honorable Supreme Court has asked ED that why the political party, namely AAP, was not made an accused in this case. Now we come to next news. Women's quota panchayat to parliament. So first of all, we will understand the quota relating to women in panchayat. Then we'll understand the quota relating to women in parliament. So basically, there is Article 40 of Constitution of India. There is Article 40 of Constitution of India, which says that there shall be organization of panchayat. क्या होगा? There shall be organization of village पंचायत. ठीक है. अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होगा. यहां पर फिर देयर वर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करता है पंचायत की, एंड पार्ट 9 of Constitution of India deals with the panchayat. Next section, Article 74 deals with the municipalities 1992. ठीक है. अब जो आर्टिकल 90 पार्ट 9 है, इट डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटी. इन दोनों में आर्टिकल 243D and 243T both deals with the 33% रिजर्वेशन टू द फीमेल और वुमेन. तो हमारे जितने भी ये पंचायत के इलेक्शन होते हैं या जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, इनमें 33% रिजर्व सीट होती हैं वुमेन के लिए. अब ये जो 33% रिजर्व सीट होती हैं, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन. अब रोटेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 5 years के लिए सीट आएंगी जनरल, मीन्स कोई भी फीमेल बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन. नेक्स्ट ईयर रिजर्व हो जाएगी नेक्स्ट 5 year, फॉर एग्जाम्पल लाइक ओबीसी. तो मतलब जब सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी तो वहां पर केवल ओबीसी की फीमेल ही इलेक्शन को कंटेस्ट कर पाएगी. फिर हम ले सकते हैं एससी और एसटी, इस तरह से सीट रिजर्व होती है. अब दिस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड टू वुमेन in 1992 by way of 73 and 74th constitutional amendment. These amendments are very important for you. Now, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर पार्लियामेंट. तो देखिएगा पार्लियामेंट में 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 के द्वारा, ठीक है, 33% रिजर्वेशन दिया गया है फीमेल को, और वो दिया गया है लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो दिस रिजर्वेशन इज नॉट इन राज्यसभा, ठीक है, रादर इट इज लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है. अब ये अभी से इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये इंप्लीमेंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि पहले सेंसस आएगा 2021 का, और फिर डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद ये एप्लीकेबल होगा. तो दिस रिजर्वेशन although it has been granted to the female, but it is not going to implement recently or in near future. Now we come to the next news, that is the impact of the Bihar caste survey. ठीक है. What is this impact of Bihar caste survey?
तो बिहार में अभी कास्ट सर्वे हुआ है और जिसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस दोनों मिलके 63% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ऑफ द पॉपुलेशन। सो बिहार की जो पॉपुलेशन है दैट इज 13 करोड़ और 13 करोड़ में से 63% जो है ईबीसी और ओबीसी हैं। नाउ हमारा हेडिंग है द इम्पैक्ट ऑफ बिहार कास्ट सर्वे, मतलब बिहार कास्ट सर्वे का क्या इम्पैक्ट होगा क्या, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि केवल बिहार ही हमारे देश का अभी फर्स्ट स्टेट है जिसने कास्ट बेस्ड सर्वे किया है। अब इसकी डिमांड जो हो रही है वो पूरे भारत में हो रही है। नाउ अगर ये पूरे भारत में किया जाता है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में किया जाता है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो हम समझते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है, हमारी प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की और प्रियम्बल 3 तरह के जस्टिस की बात करती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें आर्टिकल 15 बात करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 16 बात करता है रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। So now this reservation is on the basis of adequate representation. अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, adequate representation. अब what is this adequate representation? Adequate representation जो है क्या है कि देखिएगा जो देश है हमारा वो सभी का है, सभी सिटीजन का देश है। तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर रिलीजियन या पर्टिकुलर कास्ट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है उसी प्रोपोर्शन में उसका रिजर्वेशन भी होना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर जैसे ओबीसी की जो पॉपुलेशन है ये 63% है ओबीसी एंड ईबीसी को मिलाकर। तो यहाँ पर दे में डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस more such policies which are for the welfare of the this OBC and EBCs। तो ये इसका एक इम्पैक्ट होगा। और आप जानते हैं कि हमारे सारे डीपीएसपीज मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं ये क्या है, ये वेलफेयर इन नेचर है। तो मतलब इट इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक सम वेलफेयर पॉलिसीज। Now we come to next news. केविन मैककैर्थीज आउट। यहां पर क्या हुआ कि ये स्पीकर थे और रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते थे यूएसए में। अब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और नो कॉन्फिडेंस मोशन में मिस्टर केविन कैर्थी डिफीट हो गए, मतलब हार गए। सो नाउ ही हैज लेफ्ट हिज पोजीशन एज स्पीकर फ्रॉम द दिस यूएस गवर्नमेंट और यूएस पार्लियामेंट। नाउ यूएपीए केस अगेंस्ट पोर्टल फॉर प्लॉट टू डिसरप्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो यूएपीए की फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यस्टरडे हमने आपके साथ डिस्कस किया कि न्यूज क्लिक जो है एक वेबसाइट है और इसके फाउंडर और अदर पर्सन को अरेस्ट किया था पुलिस ने रिगार्डिंग द डिसरप्शन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया अंडर द यूएपीए एक्ट। नाउ द एप्रीहेंशन ये है और द कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस इज दैट कि दिस न्यूज क्लिक इट इज इन्वॉल्व्ड इन द activities against the sovereignty and integrity of India or sovereignty of India. So sovereignty क्या है? This term sovereignty has been used in the preamble of constitution और preamble of the constitution कहती है कि we the people of India will make the India as a sovereign state। sovereign state का मतलब इंडिया एक independent state है और इंडिया किसी भी कंट्री के अंडर नहीं है, ठीक है। नाउ अब देखिए क्या है कि पुलिस के कंटेंशन ये है कि न्यूज क्लिक ने 77 करोड़ रुपीस रिसीव किए हैं बिटवीन 2018 एंड 2021, ठीक है। और ये जो
मनी है 77 करोड़ रुपीज. दिस मनी इज बीइंग यूज्ड टू रेज द प्रोपोगेंडा इन फेवर ऑफ चाइना. ठीक है, तो ये चाइनीज प्रोपोगेंडा को उकसाते हैं, बढ़ाते हैं. ठीक है, इस ग्राउंड पर अब आप जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है कंपैरेटिवली. ठीक है, तो इस ग्राउंड पर इनको अरेस्ट किया गया. नाउ जो सेकंड पार्टी है मींस द न्यूज क्लिक है, उन्होंने कहा है कि उनके पास ये राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकते हैं, एंड दिस राइट हैज बीन गिवन टू देम बाय वे ऑफ सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन 41D कहता है राइट ऑफ द एक्यूज पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन. ठीक है, उसका राइट है कि वो इंटरोगेशन के दौरान अपने उससे मिल सकते हैं. अब यहाँ पर एक टर्म और है, एक तो टर्म होती है ड्यूरिंग द इंटरोगेशन और दूसरा होता है थ्रू आउट द इंटरोगेशन. ठीक है, तो किसी भी एक्यूज पर्सन का ये राइट होता है कि वो ड्यूरिंग द इंटरोगेशन अपने एडवोकेट से मिल सकता है, बट दिस राइट इज नॉट एक्सटेंडेड टू द थ्रू आउट द दिस इन्वेस्टिगेशन. अब हम इसको समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी पर्सन का 2 घंटे इन्वेस्टिगेशन करती है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सो 2 घंटे में वो उससे मिल सकता है. ठीक है, एक बार मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो 2 घंटे एडवोकेट उसके साथ में बैठा रहे. तो दिस विल अमाउंट टू थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज नॉट अलाउड इवन बाय द CRPC. Now we come to the next news. Media bodies write to CGI call for norms on interrogation of journalists. ठीक है, तो मीडिया बॉडीज ने CGI को लिखा है कि जो जर्नलिस्ट हैं इनकी इंटरोगेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज पुलिस के पास राइट है इन कॉग्निजेबल केसेस में कि पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है. ठीक है, और अगर उस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है then police has two right in the cases of cognizable cases. First right is arrest to that person and second right क्या है, पहला राइट है उस पर्सन को अरेस्ट करना और सेकंड राइट है उस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करना. ठीक है, और अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद कंप्लीट ट्रायल होगा. देन आफ्टर ट्रायल the liability of that person will be determined by the honorable court. तो ट्रायल के बाद ही पता चलता है कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है. लेकिन अब कॉग्निजेबल केसेस में अगर पुलिस किसी भी जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लेगी तो ये क्या होगा, बिकॉज दिस मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के लिए एक इंडिपेंडेंट मीडिया का होना जरूरी है. सिमिलरली there is a right of every citizen or fundamental right of every citizen under article 19(1)(a) और वो 19(1)(a) क्या कहता है, right to speech and expression. right to speech and expression. ठीक है, अब क्या होता है कि जो right to speech and expression है ये हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं. यहां पर right to media is also covered. सो इसलिए बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है और CGI से रिक्वेस्ट की है कि देयर शुड बी सम नॉर्म्स टू फॉर द इंटरोगेशन ऑफ अ जर्नलिस्ट. नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज. US कॉन्वे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मीडिया. तो US के मीडिया डिपार्टमेंट ने और प्रेस डिपार्टमेंट ने इंडियन मीडिया के लिए एक सपोर्ट एक्सटेंड किया है. Now we come to next news. That is the majority verdict in JMM bribery case was wrong. Center tells Supreme Court. अब बेसिकली यहां हम समझते हैं दिस केस इज झारखंड मुक्ति मोर्चा केस 1998. यहां पर
टेक्निकल लॉ की बातें इन्वॉल्व है, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। There are two articles in the Constitution of India. One is Article 105 और 105 डील्स विद द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब ये प्रिविलेजेस जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। एंड आर्टिकल 194 डील्स विद द प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पर्सन ने बीट एमएलए और एमपी, ठीक है, आउटसाइड द कोर्ट, आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ पार्लियामेंट कोई ब्राइब ली है, रिश्वत ली है, और वो ली किस रेफरेंस में है कि उनको कुछ पर्टिकुलर स्पीच देनी है किसी पर्टिकुलर मैनर में। ठीक है, तो क्या यहां पर प्रिविलेजेस एक्सटेंड होंगे? ठीक है, या ऐसे पर्सन के खिलाफ, ऐसे एमएलए और एमपी के खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली लॉ इस रेफरेंस में कहता है कि जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज कहता है फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच। क्या है? फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच। तो वर्ड 105 आर्टिकल में और 194 में द वर्ड इज राइट टू स्पीच हैज बीन यूज्ड देयर। ठीक है, नाउ अब whether this right to speech or right to cast vote in a particular matter will include right to take bribe to ask a particular question, so answer is no। ठीक है, so यहां पर ये प्रिविलेज एक्सटेंड नहीं किया जा सकता अगर कोई पर्सन ब्राइब ले रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर पर्सन ने कोई ब्राइब ले ली है, ठीक है, सो द मोमेंट ही हैज टेकन ब्राइब ही हैज कमिटेड ऑफेंस, क्योंकि आफ्टर टेकिंग द ब्राइब द पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस। सो भले ही उसने उस रेफरेंस में कोई क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है, merely taking the bribe is sufficient to constitute the offense। Now we come to next news। ED should give copy of ground of arrest। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो स्पेसिफिकली नहीं वर्ड यूज करता कि उस पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है इन्फॉर्म। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्म वर्ड है, इन्फॉर्म में ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया हुआ है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट शुड बी इन्फॉर्म टू द एक्यूज पर्सन, लेकिन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का इन्फ्रेंस हम ड्रॉ करेंगे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 से। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है वो बात करता है क्या कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जब कोई पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी देन पुलिस इज बाउंड टू टेल हिम द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, और ये गाइडलाइन क्या थी मैं आपको बताता हूँ। गाइडलाइन क्या थी कि जब पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस, हियर वर्ड पुलिस आल्सो इंक्लूड द एनी अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लाइक CBI एंड द ED। ठीक है, तो जब वो किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी देन इट इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस टू इन्फॉर्म हिम द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो जब वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगी, सेकंड पॉइंट क्या है कि उसके किसी रिलेटिव को या फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि दैट पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। अब अगर वहां पर रिलेटिव या फैमिली मेंबर नहीं है तो सोसाइटी के किसी भी रेप्यूटेड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा कि दिस पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। नेक्स्ट क्या होता है कि पुलिस के पार्ट पर या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो बनाएगी सीजर मीमो। सीजर मीमो का मतलब है कि उसको उसके पास से उन्होंने उसको क्या मिला है ना। फॉर एग्जांपल पर्सन में हैव एनी वेपन इन हिज पोजीशन, तो उस वेपन को रिकवर किया तो उसका एक सीजर मीमो होगा। ठीक है, ये बनाएगी। अब ये जो सारी ग्राउंड्स हैं इनको सेक्शन 41A, 41B, 41C एंड 41D में क्या बना दिया है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। किसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया?
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट कर दिया है 2009। ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट स्पेसिफिकली मेंशन करनी है, और अगर ईडी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताती then it will be deemed to be the violation of fundamental right of that person under article 22 clause 1 of the constitution of India. Now we come to next news. So basically नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में एशिया में गोल्ड मेडल जीता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट न्यूज। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसने भी ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था और इसने एशिया में भी गोल्ड मेडल जीता है। सो द नेम ऑफ नीरज चोपड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next more such the Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.